Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to start next chapter, employment from standard 12, for the same unit, current challenges facing Indian economy. So related to this chapter we have to discuss something which is important. What about employment, workers? Clear? So children, as we know on this earth there is variety of works. बहुत से काम है और हर person अपने अलग अलग काम में लगा हुआ है. Like someone indulges in their own business, some are working under some other persons, either it is agriculture, industries, banks, firms, shops, marts, schools, colleges, universities, our housemates even. So all human beings are working here and there. Some are busy in their own self-made products. कुछ अपने खुद के हाथ से बनाए हुए काम में भी बिजी हैं, जैसे कि वीविंग, स्टिचिंग, ब्लीचिंग, पेंटिंग्स. वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपर्टीज़म को यूज़ कर रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं. जैसे कि हम जानते हैं आजकल हो भी यही रहा है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन काम ज़्यादा चल रहे हैं. मोटिव क्या है सबका? हाउ टू अर्न, कैसे पैसा कमाया जाए. एंड ऑल आर वर्किंग एज अ लेबर, वर्कर, बॉस, एंटरप्रेन्योर. हर पर्सन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मोटिव सबका क्या है? सेम, हाउ दे कैन जनरेट इनकम. अगर हम टीचर की भी बात करें, अ पर्सन हु इज़ अ टीचर इज टीचिंग, गिविंग हिज अर लेबर फॉर विच ही और शी अर्न्स मनी. सो हु इज़ अ वर्कर नाउ? वर्कर कौन है? All those who are engaged in various economic activities, either earning less or more, but contributing in the GDP of our country, henceforth considered as a worker. वो हर इंसान जो कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है, कुछ पैसा कमा रहा है, हमारी GDP को बढ़ाने में, अपनी नेशनल इनकम को रेज करने में हेल्प कर रहा है, वो हमारे लिए एक वर्कर है. हमारी इकनॉमी में डिफरेंट टाइप के वर्कर्स हैं. कैजुअल वर्कर, फुल टाइम वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर. Clear? So sometimes labor get ill, don't go for their work. It doesn't mean he will not be considered as a labor. So it should be clear, a labor is always considered a worker, either he is on job or at home, working under some other person, or self-employed, means running their own business, but due to weather conditions or physical disability, injury, family functions, etc., workers temporarily abstain from work. कई बार वो काम से छुट्टी ले लेते हैं. अब सपोज मैं बीमार हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वीडियो नहीं दे रही रिकॉर्ड करके, आपको लाइव लेक्चर नहीं मिल रहा, या आपको क्लासेस नहीं आपकी लग रही. इट डजेंट मीन कि मैं अब वर्कर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ. प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, बट डजेंट मीन दे आर नॉट अ वर्कर. स्टिल दे विल बी कंसिडर्ड एज वर्कर्स. क्लियर? So let's move to the contents of this chapter. About this chapter, what we will study in this chapter: workers and employment, self-employment and hired workers, employment in firms, growth and changing structure, informalization and unemployment. So these are the certain contents which we will study in this chapter. So let's start. Workers and employment, participation of people in employment, that is the first content of this chapter, and these are the certain basic terms of this chapter we have to do, we have to be know about it. What is GDP? GDP क्या है बेटा? GDP refers to the sum total of final goods and services produced within the domestic territory of a country by the residents or non-residents of our country for a financial year or a given year is called its GDP. I repeat, हमारी कंट्री में रह करके और बाहर से आकर के जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा की गई प्रोडक्शन का सम टोटल एक वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया गया, या गिवन ईयर जिसको हम कह सकते हैं, इज नॉन एज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. Remember children, the value of only final goods will be included, not the intermediate goods. Domestic territory refers to our own country. Next is economic activities. Now what do you mean by this? Children, all those activities which are carried with the motive of profit are economic activities. Those activities which contribute to the GDP are called economic ones. Now what is employment? All those who are engaged in economic activities are in employment or considered as employed. जो कुछ ना कुछ काम में लगे हुए, किसी तरीके का काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए एम्प्लॉयड हैं. सो दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट. सो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी कि कुछ महीनों के लिए काम मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर, और कुछ लोगों को पूरे साल के लिए काम मिलता है, जैसे कि टीचिंग का काम, बैंकिंग प्रोफेशंस. डिफरेंट टाइप का एम्प्लॉयमेंट होता है हमारी इकनॉमी के अंदर. नेक्स्ट, 3 डिफरेंट टर्म्स: लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट लेबर सप्लाई, फिर हम लेबर फोर्स की तरफ बढ़ते हैं. चिल्ड्रन, लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर. विलिंग
विलिंग वर्ड आई एम यूजिंग. लेबर सप्लाई क्या है? विलिंग, काम करना चाह रही है. टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट, कि जो वेज रेट मार्केट में अवेलेबल है उस पर काम करने के लिए वो विलिंग है, रेडी है. सेकेंड है हमारी लेबर फोर्स. अब लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क, जो काम कर सकते हैं, एंड विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाह रहे हैं, बट कैन नॉट गेट वर्क, लेकिन काम नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को, दैट इज़ हु आर अनएम्प्लॉयड. यानी लेबर फोर्स के अंदर वो भी हैं जो काम करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो करना चाह रहे हैं जिन्हें भी काम नहीं मिला. ठीक है, तो दैट इज़ आर लेबर फोर्स, जो करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को भी काम मिला भी नहीं है. अब वर्क फोर्स क्या है? वर्क फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग. लेबर फोर्स क्या थी? कि जो काम करना चाह रही हैं, यानी कि वर्क फोर्स प्लस नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट आर अनएम्प्लॉयड, वो हमारी लेबर फोर्स है. लेकिन वर्क फोर्स क्या है? एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में काम कर रही है. Workforce refers to the number of persons actual working, that is who are willing to work and actually working also. So labor force is different from workforce. I repeat those three. Labor supply, those who are willing. Labor force means willing to work but cannot get work. Workforce means those who are actually working. Now there is question arise, why there is difference between worker population ratio in rural and urban areas? Why there is difference between worker population ratio in rural and urban areas? दोनों की रेशियो में डिफरेंस क्यों है? What is the answer? What you will write, children, listen carefully. The first, these questions are important. The first major difference is their education. Urban area के people ज़्यादा educated हैं, that is why they search for those jobs which सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, जो उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स से जुड़ी हुई होंगी, उनसे रिलेटेड होंगी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिलेंगी. सो दीज पीपल हैव वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. लेकिन जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो कम एजुकेटेड हैं, इवन स्कूल भी नहीं गए, कुछ लोग घर पे ही रह गए. सो दे डिसकॉन्टिन्यू इन द मिडल टू ज्वाइन द वर्क फोर्स. उनको बीच में ही काम में लगना पड़ा बिकॉज देयर इकोनॉमिक कंडीशन डजेंट अलाउ दैम. सो मैनी ऑफ दैम वर्क्स इन देयर एग्रीकल्चर फॉर्म्स एंड अदर्स शिफ्टेड इन सर्च ऑफ जॉब टू अर्बन एरियाज. कुछ लोग एग्रीकल्चर अपने घर के फार्मिंग एक्टिविटीज़ में शिफ्ट हो गए, कुछ लोग काम की तलाश में अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो गए. सो दिस सेक्शन ड्यू टू देयर वीकनेस आर ऑलवेज रेडी टू वर्क एट इवन चीप वेज रेट्स फॉर इवन मोर हार्स. तो रूरल एरिया के लोग कम दाम पे ज़्यादा हार्स करने के लिए भी रेडी हैं, ज़्यादा काम करने को रेडी हैं, इसलिए ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में डिफरेंस पाया जाता है. दैट विल बी द आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ इंपॉर्टेंट. Why are less women worker in general and urban areas? Due to several reasons. Where men are able to earn high incomes, families discourage female members from taking up jobs. जहाँ मैन हाई इनकम अर्न कर रहे हो वो फैमिलीज फीमेल मेंबर्स को डिस्करेज करती हैं जॉब्स में जाने के लिए. सेकेंड पॉइंट इज इन अर्बन एरियाज वुमेन आर फोर्स्ड फॉर देयर एजुकेशन नॉट फॉर जॉब्स. अर्बन एरिया के अंदर वुमेन्स को फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए नहीं. लेकिन जो रूरल एरिया की लेडीज़ हैं उन्हें फोर्स किया जाता है काम करने के लिए. किस लिए? क्योंकि उनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती. बिकॉज अर्निंग्स ऑफ मेल वर्कर्स आर जनरली हाई देन रूरल मेल्स. आई रिपीट, अर्निंग्स ऑफ मेल वर्कर्स आर जनरली हाई देन रूरल मेल्स. सो दैट अर्बन फैमिलीज डू नॉट वॉन्ट फीमेल्स टू वर्क. वो नहीं चाहते कि फीमेल्स काम करें, बट रूरल वुमेन फोर्स टू गो फॉर वर्क. वाई? Due to their conditions of the family. If a woman is going in fields or farms will be considered as productive activity. अगर woman fields में farms में काम करने जा रही है उसे हम क्या काउंट करेंगे? productive activity. She will be counted as workforce. But a woman from urban area who works as many household activities are not recognized as productive work. क्योंकि वो घर का काम कर रही है, बाहर जाके काम नहीं कर रही है. बाहर जाके जो काम किया जा रहा है उसे हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काउंट करते हैं. जो घर पे रह के काम किया जा रहा है, चाहे वो रूरल एरिया की लेडी हो चाहे वो अर्बन एरिया की लेडी हो, उसे हम काउंट नहीं करते. क्यों काउंट नहीं करते? क्योंकि वो कंजप्शन एक्टिविटी है. ऐसा हमने नेशनल इनकम में पढ़ा है बेटा ऑलरेडी. क्लियर दीज टू क्वेश्चंस. सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्कर्स? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स. एंड हायर्ड वर्कर्स आर फर्दर टू टाइप्स, कैजुअल एंड रेगुलर सैलरीड वर्कर्स. अब ये होते क्या हैं? सो हम सेल्फ एम्प्लॉयड से स्टार्ट करते हैं. दीज पीपल हु वर्क इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन एंड गेट प्रॉफिट एज देयर रिवार्ड.
आर सेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं. इट्स मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. ये एक मेजर सोर्स है, पैसा कमाने का ज़रिया है, उनका काम करने का तरीका है. कितनी वर्क फोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड में लगी हुई है, कितनी पॉपुलेशन हमारी है, 52%. अब बात करते हैं हार्ड वर्कर्स की. दीज आर दोज पर्सन्स who are working or hired by the others and are paid wages or you can say salaries as a reward for their work are called hired workers, जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं. Now these hired workers may be casual kind of or works on regular salary basis. अब casual workers क्या है? Casual workers are not hired by their employers, hire नहीं किए गए. I repeat, casual workers are not hired by their employers on permanent or regular basis. They do not get social benefits at all. They account for 30% of India workforce. For example, construction labor. हमारे जो मज़दूर होते हैं, मिस्त्री मज़दूर, वो हमारी कंस्ट्रक्शन लेबर कहलाती है. ये किसी के द्वारा हायर नहीं किए गए होते हैं परमानेंट बेसिस पे. हाँ, रोज़ आते हैं और जब कहीं परमानेंट ठेका मिलता है लोगों को तो भी कुछ समय के लिए काम मिलता है. ये परमानेंट या रेगुलर वर्क इनके लिए कभी नहीं होता. Next is regular salaried employees. Children, these people are hired by their employer on a permanent basis. जैसे कि स्कूल में टीचर्स जॉब कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, CAs हैं हमारे, वो परमानेंट जॉब्स करते हैं, परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं. उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं लाइक पेंशंस, HRAs. क्लियर? सो दे अकाउंट फॉर 18% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स. क्लियर? अब हम तीनों का टोटल कर दें इन शॉर्ट. The status of workforce and the percentage of total workforce is following. Self-employed 52%, casual labor 30%, regular employees 18%. Sum total is equal to 100%. Employees employment में है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा है 52%. कैजुअल लेबर हमारे मिस्त्री मजदूर 30% है, लेकिन परमानेंट जॉब्स वाले एम्प्लॉयज सबसे कम है, दैट इज 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. नाउ next topic is employment in firms or factories and offices. So children, all economic activities are divided into 8 different industrial divisions: agriculture, mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, trade, transportation and storage, services. So these are the 8 different industrial divisions. अब इन तीनों को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कैसे डिवाइड कर रहे हैं? वेट चिल्ड्रन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग कम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर किस में आ रहा है? हमारा एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में. माइनिंग एंड क्वेरिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, दिस कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर. और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है. ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, सर्विसेज, दीज कम्स इन टर्शरी सेक्टर. कंस्ट्रक्शन किस में आएगा? ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा ना. प्रोडक्शन और ये काम हो रहा है तो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में. लेट मी रिपीट, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, दीज कम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, construction, these all comes in tertiary sector. Trade, transportation, storage, services, these comes in tertiary sector. So these are the divisions of 3 sectors on the basis of economic activities. Now next topic is growth and changing structure of employment. Growth and changing structure of employment. What are the indicators of economic development? हमारे economic development के indicators क्या है इसके अंदर? हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ किसके ऊपर बेस है? क्या स्ट्रक्चर है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का? देयर आर 2 इंडिकेटर्स. ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना ज़्यादा रोजगार बढ़ रहा है, कितनी हमारी जो है रोजगार है, कितना मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, कितनी हमारी जनता को काम मिल रहा है. जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी. तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट, इकोनॉमी की ग्रोथ किसके ऊपर बेस है? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर. सेकेंड, हमारी GDP की ग्रोथ कितनी चल रही है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम जनरेट होंगी, प्रोडक्शन रेज होंगी, काम मिलेगा, लेबर की डिमांड बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली खर्चे होंगे इकोनॉमी के अंदर, सेविंग इन्वेस्टमेंट रेज होंगी, तो उससे GDP की भी ग्रोथ होगी. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. As India's planned development have been aimed at expansion of the economy through increase in GDP and employment.
Children, this can be asked for 1 mark. What are the indicators of economic development? Your answer will be growth of employment and GDP. Now, these are the two tables, as first one I have shown in the sector wise comparison, second one in the employment pattern, that is status wise. So employment pattern, trends in employment pattern, that is the first table on the basis of sectors, and the second table shows on the basis of status. So this first table, it shows इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड सर्विसेज. अगर हम देखें कंपैरिजन 1972 का 2011-12 के साथ लास्ट, तो हमें नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम मिला है. बाकी सेक्टर्स में भी चल रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. चाहे हम 1999 को 2011-12 के साथ कंपेयर करें, तभी प्राइमरी में ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे लोग सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुए. पहले सारी पॉपुलेशन ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम था, लेकिन धीरे धीरे सेकेंडरी सर्विसेज में भी शिफ्ट होते चले गए, क्योंकि वहाँ से भी इनकम सोर्स का रेस होना शुरू हो गया. अगर हम स्टेटस वाइज चेक करें कि सेल्फ एम्प्लॉयड की परसेंटेज का कंपैरिजन, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, कैजुअल वेज लेबर्स, इनका कंपैरिजन किया जाए, तो हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा है. 1972-73 का डाटा देखें, 1983 का डाटा देखें तो वहाँ भी सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा है 57.3. 1993 में भी यही नज़र आया हमें, 1999 में भी यही नज़र आया, इवन 2011-12 में भी हमें यही नज़र आया. तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? सेल्फ एम्प्लॉयड परसेंट रेशियो हमारी सबसे ज़्यादा है. क्लियर? नाउ व्हाट इज़ जॉबलेस ग्रोथ? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन, कैन बी आस्क्ड फॉर 1 mark, कैन बी आस्क्ड फॉर 3 marks ऑल्सो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जॉबलेस ग्रोथ? Children, it is a situation where there is an overall acceleration, या मैं कहूँ growth in the rate of GDP in the economy. कंट्री की GDP, हमारी इकोनॉमी की GDP तो रेज हो रही है, लेकिन बिना एम्प्लॉयमेंट को रेज किए. एम्प्लॉयमेंट रेज नहीं हो रहा, लेकिन वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. एम्प्लॉयमेंट को रेज नहीं किया, दूसरे तरीके से हम लोग GDP को रेज करें. अब वो दूसरा तरीका कोई भी हो सकता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी लेबर काम कर रही है, हमने अपने टेक्निक को चेंज किया हो सकता है, मॉडर्न टेक्निक को यूज़ किया हो, अपडेटेड टेक्निक को यूज़ किया हो, जिससे हमारी प्रोडक्शन रेज हुई हो, जिससे इकोनॉमी की इनकम रेज हुई हो, लेकिन हमने एम्प्लॉयमेंट को रेज नहीं किया, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को नहीं लगा रहे, हम कैपिटल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं. तो इट मीन जॉबलेस ग्रोथ क्या है? दिस इज अ टर्म where there is an overall acceleration, or you can say the growth in the rate of GDP, but without increasing employment. This is an important question, children. Jobless growth. Now next is informalization of Indian workforce. Informalization क्या है? This term can be asked for 1 mark. That is important, children. Informalization of employment means the formal sector is growing at much slower pace than the informal sector. अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर से कंपेयर करें फॉर्मल सेक्टर को, तो इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर फ्रीली काम करता है, कोई लेना देना नहीं, किसी का गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं, अपनी मर्जी से काम कर रहा है. तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या है कि जहाँ फॉर्मल सेक्टर को अगर हम कंपेयर करें इनफॉर्मल सेक्टर के साथ, तो उसकी ग्रोथ बहुत धीरे है, यानी इनफॉर्मल सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर, दैट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड इनफॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर क्या है बेटा? इसके अंदर क्या आ जाता है? जितने भी हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट यानी पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट कहें, प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट कहें, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हायर्ड वर्कर्स, कितने हायर्ड वर्कर्स को? 10 हायर्ड वर्कर्स को. जो 10 हायर्ड वर्कर या उससे ज़्यादा लोगों को काम दे रहे हैं, वो हमारे फॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं. वो सब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज जो 10 लोगों को काम दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा लोगों को अपने अंडर काम दे रहे हैं, वो हमारे फॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं. अब इसके अंदर क्या क्या फ़ायदा मिलता है हमें? देखो, रेगुलर इनकम, लगातार इनकम आ रही है, कोई लॉस नहीं है. बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सब बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंदर ट्रेड यूनियंस भी बनती हैं, जैसे कि जितने भी हमारे लेबर होते हैं उनका एक यूनियन होता है, उनकी यूनियन होती है, उनका एक यूनियन एक मेन बंदा भी होता है जो डिसीजंस लेता है, बाकी सब जो वेजर्स होते हैं, जो लेबर होती है, उसको फॉलो अप करते हैं. इससे क्या होता है? वो बार्गेनिंग करते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ अपनी बेटर वेजेस के लिए, अपनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए. इन दिस दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस ऑल्सो. गवर्नमेंट प्रोटेक्ट थ्रू इट्स लेबर लॉज. अब गवर्नमेंट ने अपने कुछ लॉ बनाए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं लेबर की प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के लिए. तो यहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहती है फॉर्मल सेक्टर के अंदर. वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, सभी एंटरप्रेन्योर, सभी एम्प्लॉयर्स उसको फॉलो अप करते हैं. अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या है?
या हम इसको कहें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज़ दिस? इसमें भी हम कह सकते हैं कि 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को जब हायर किया जाए, 10 लोगों को या 10 से ज़्यादा लोगों को हायर किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अलावा जो आ जाते हैं इसके अंदर, उन्हें हम इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं. लाइक यू कैन से मिलियंस ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स आर वर्किंग अंडर दिस इनफॉर्मल सेक्टर. जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किसके अंदर आती है? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर. ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, छोटे मोटे एंटरप्राइज, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों को हम इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई लेना देना है नहीं, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं. द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जहाँ हमें समझ में अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे मीन्स कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ऑल नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबर्स. नाउ अब इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें? नो ट्रेड यूनियंस, ना ही कोई ट्रेड यूनियंस बनती हैं, ना कोई सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे, ना ही गवर्नमेंट को कोई इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, अपने लेवल पे काम करेंगे. कैजुअल वेज लेबर्स जितनी भी हैं हमारी, वो काम कर रही हैं एक एम्प्लॉयर के अंडर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों. ठीक है, तो दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ विल यू नो वेदर वर्कर इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर? दैट इज NCERT क्वेश्चन. हाउ विल यू नो वेदर वर्कर इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर? कैसे पता चले? So your answer will be all those who are working in enterprises other than the public sector establishments or private sector enterprises will employ to hired workers or more are called informal sector workers. Clear? That is informal sector workers. Now second question is, who is the major formal sector employer in the country? सबसे ज़्यादा जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वो कौन दे रहा है? सरकार ही खुद ही दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है. Now next question is, establishment with 4 hired workers is known as. एक इंडस्ट्री या हम एस्टेब्लिशमेंट कहें जहाँ सिर्फ 4 हायर्ड वर्कर्स हैं, उसे अब हम फॉर्मल सेक्टर कहें या इनफॉर्मल सेक्टर कहें? देखो अब यहाँ पे ये डिस्कस नहीं किया गया कि वो गवर्नमेंट की दो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट या पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट. इट मीन्स वो किसी का कोई लेना देने नहीं है, तो हम इसे इनफॉर्मल सेक्टर कंसिडर कर रहे हैं. क्लियर? दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम NCERT. Now there are some important points. 6% of people employed in formal sector. 6% of percentage of people employed in formal sector. कितनी परसेंट काम कर रही है formal sector में? Only 6%. These are the 1 mark questions. Kind point to be noted. 94% are in the informal sector. यानी 100% का 6% तो हमारा formal sector में है और 94% हमारा informal sector में लगा हुआ है. आउट ऑफ 30 मिलियन वर्कर्स, जो हमारी इकोनॉमी की 30 मिलियन वर्कर्स हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर, ओनली 6 मिलियन फॉर्मल सेक्टर में कितने काम कर रहे हैं? 30 में से 6 मिलियन, दैट इज़ 21% आर वुमेन, जिसमें 21% तो वुमेन है. एंड इनफॉर्मल मेल वर्कर्स अकाउंट फॉर 69%. इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मेल वर्कर्स कितने हैं? 69%. तो ज़्यादा परसेंटेज कहाँ दिख रही है हमें इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मेल वर्कर्स की. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जहाँ लेबर काम करना चाह रही है लेकिन उनके पास काम अवेलेबल नहीं है. डिफरेंट टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी इकोनॉमी के अंदर. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? छुपी बेरोजगारी, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर सम पीपल सीम टू बी एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली नॉट. लगता है काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में काम नहीं कर रहे होते. फॉर एग्जाम्पल एक फार्म लैंड है, ठीक है, जिसके अंदर 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक जॉइंट फैमिली है. 4 लोग खेतों में काम करते हैं, 2 लोग फ्री बैठते हैं साइड में. अब वो 2 लोग जो कुछ काम नहीं कर रहे, अगर हम उस काम से उन्हें निकाल दें, क्योंकि जब इनकम आएगी तो भैया 6 के 6 ले लेंगे. काम तो ये 4 कर रहे थे, 2 फ्री बैठते हैं बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह, लेकिन फिर भी इनकम चाहिए इन्हें. अगर इन 2 लोगों को मैं काम से आउट कर दूं तो क्या मेरी प्रोडक्शन में कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं. बल्कि अगर मैं इन्हें कहीं और अपॉइंट करूँगी किसी और काम में, तो ये कुछ नेशनल इनकम को जनरेट करने में हमारी हेल्प करेंगे. सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये कॉमन फॉर्म है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि इंडिया में प्रिवेल करती है. स्पेशली कहाँ प्रिवेल करती है? ये रूरल एरिया के अंदर. डिस्गाइज और सीजनल स्पेशली हमारे टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है. सीजनल मीन्स कुछ जहाँ पे जैसे कुछ महीनों का कुछ टाइम के लिए काम होता है, उसके बाद लेबर हमारी फ्री हो जाती है, तो काम की तलाश में अर्बन एरिया में माइग्रेट हो जाती है. दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट.
थर्ड हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है जो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में पाया जाता है, जहाँ लेबर काम करना चाह रही है लेकिन काम अवेलेबल नहीं है. सो दैट मीन्स ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डाटा कौन कौन प्रोवाइड करता है, हमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, दैट इज द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क चिल्ड्रन. रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि हर 10 साल बाद हमें पॉपुलेशन का डाटा देती है, डिफरेंट चीज़ों पे हमें सेंसस देती है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा प्रोवाइड करती है. सेकेंड हमारी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस और यू कैन से नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस के ऊपर रिपोर्ट प्रोवाइड करती है. थर्ड वन इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. बेरोजगारी भत्ता सुना है हमने, जो कि कोर्ट के अंदर प्रोवाइड होता है. ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारे कोर्ट के अंदर होता है. जो भी हमारी स्टेट के अंदर कोर्ट बनी हुई है, हमारी सिटी के अंदर कोर्ट बनी हुई है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है. जो लोग कुछ भी काम जिन्हें नहीं मिला हुआ है अब तक लेकिन पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो जाता है, जब तक उन्हें जॉब प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जाती है. सो दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस, these sources provide different estimates of unemployment. हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिफरेंट डाटास प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दे डू नॉट प्रोवाइड अस विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड, कि अनएम्प्लॉयड एक्चुअल में कितने हैं एंड द वैरायटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन आर कंट्री. डिफरेंट प्लेसेस पे अनएम्प्लॉयमेंट कितने रेट से प्रिवेल कर रही है, प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होता. सिर्फ सम टोटल में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है परसेंटेज फॉर्म में हमें बता दिया जाता है. एक्चुअल मतलब एस्टिमेशन लगाया जाता है, एस्टिमेशन बेसिस पे हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है. एक्चुअल कंपैरिजंस के ऊपर डाटा हमें प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम किस मेथड को फॉलो अप करें. नाउ गवर्नमेंट रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. गवर्नमेंट प्रोवाइड डायरेक्ट जॉब्स, प्रोवाइड रॉ मटेरियल, क्रेडिट फैसिलिटीज़ थ्रू वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. इन तरीक़ों से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रही है. जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उससे क्या होगा, रोड, डैम, ब्रिज बनेगी तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी. लेकिन ये सब चीज़ें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, इनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को काम देना है, लोगों की अदर ज़रूरतों को भी पूरा करना है, ताकि उन्हें न्यूट्रिशियस फूड मिले, पीने का साफ़ पानी मिले, एजुकेशन मिले उनके बच्चों को, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले. हमारी जो रूरल एरियाज़ की रोड्स हैं वो ज़्यादा उनकी कंस्ट्रक्शन हो, उनके लिए कच्चे हाउस की जगह पक्के हाउस मिले उन्हें, रहने का साधन मिले उन्हें, उनके लिए काम मिले उन्हें. Moreover, I said through various generation employment programs. कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, लाइक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधान जनधन योजना. बहुत सारी योजना स्टार्ट की गई जिनका मोटिव, जो अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना नहीं था, बल्कि उन एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करना भी उनका मेन मोटिव था. So children, your chapter is completed here. I hope all the concepts are clear to you. So be in touch. If there is any query, you can ask in the comment box. Stay connected. We will meet in the next video with the next lecture, with the next chapter. Till then, stay happy, stay safe at home. Thank you. Have a nice day ahead.